پاکستان کسی تنازع کا حصہ نہیں بنے گا، ہم صرف امن کے شراکت دار ہیں۔ امریکہ افغانستان مسئلے کا فوجی حل نکالنے میں ناکام رہا، مسئلے کا واحد حل سیاسی تصفیے میں ہے۔ پاکستان نے طالبان اور امریکہ کو مذاکرات پر آمادہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ہم افغان فریقین کے درمیان مفاہمت کی بنیاد پر امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ افغانستان میں صدارتی الیکشن سے پہلے مفاہمتی عمل مکمل ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ خواتین پر جنسی تشدد اور پردے سے متعلق میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ میں نے اسلام میں پردے پر بات کی جو صرف خواتین تک ہی محدود نہیں، مردوں کے لیے بھی پردے کا لحاظ کرنا لازمی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ملاقات، معاشی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں دستیاب مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب واپسی کے منتظر پاکستانی محنت کشوں کے لیے بروقت اقدامات کی ضرورت پر زور۔ پاک سعودی سپریم کوارڈینیشن کونسل کو فعال کرنا قابل تعریف ہے۔ عمران خان۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی راولپنڈی میں ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ افغان امن عمل اور رابطہ کاری کے امور بھی زیر غور آئے۔ ISPR۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، سڑکیں تالابوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ راولپنڈی میں 125 ملی میٹر بارش ریکارڈ، نالہ لئی کی سطح بھی بلند۔ اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ انتظامیہ نالوں سڑکوں کو صاف کرنے میں مصروف عمل۔ راول ڈیم کے سپل ویز کھولے جا رہے ہیں۔ دریائے کرنگ اور دریائے سواں کے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ آج کے دن دریا کے کناروں سے دور رہیں۔ ریسکیو اور انتظامیہ کی ٹیم موجود ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد۔ جمہوری روایات کی بات کرنے والے لاڑکانہ میں بھی اس کا خیال رکھیں۔ ہم خوددار قوم ہیں، خودداری کا سودا نہیں کریں گے۔ سیاسی عمل جاری رہتا ہے، حقیقت کو تسلیم کیا جائے۔ سندھ کے عوام تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ بلوچستان پاکستان کی اہم اکائی ہے۔ بلوچستان کے ناراض طبقے کو قومی دھارے میں لایا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان کے افغانستان سے دیرینہ تعلقات ہیں۔ 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین اس وقت پاکستان میں ہیں۔ ہم افغانستان میں استحکام کے خواہاں ہیں۔ افغانستان میں امن و استحکام اور ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا تقریب سے خطاب۔ کشمیریوں نے 25 جولائی کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں کے حقیقی ترجمان ہیں۔ گیلپ سروے کے مطابق تحریک انصاف عوام میں مقبول جماعت ہے۔ نواز شریف لندن میں ملک دشمنوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 38 سیالکوٹ میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری۔ پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ مسلم لیگ نون کے طارق سبحانی اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار احسن بریار کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ یہ نشست مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی خوش اختر سبحانی کے انتقال کے بعد خالی ہوئی۔ حلقے میں 165 پولنگ سٹیشنز قائم، 33 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا۔ پولنگ کے دوران حلقے میں دفعہ 144 نافذ۔ ملک میں کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی، مثبت کیسز کی شرح 7.8%، 24 گھنٹے کے دوران 4119 نئے کیسز، مزید 44 افراد جاں بحق۔ دنیا بھر میں کورونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا کے پھیلاؤ میں تیزی، کیسز کی شرح میں ایک بار پھر اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5,70,000 مزید افراد کورونا وائرس کا شکار، 9,337 متاثرہ افراد لقمہ اجل بنے۔ امریکہ، برطانیہ، روس، ایران اور انڈونیشیا کے ہزاروں افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص۔
मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने के और 6 हथकंडे। मोदी की फिस्ताई हुकूमत कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मसरूफ। तनाज़ कश्मीर का आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाब राय के जरिए हल निकाला जाए। हुर्रियत रहनुमा। अफगानिस्तान में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान के दरमियान मुख्तलिफ अजला में शदीद लड़ाई जारी। हुकूमती फोर्सेज का सुबह कपीसा के जिला नजराब में तालिबान हमलों को नाकाम बनाने का दावा। शहर और इसके अतराफ में रात गए शुरू होने वाली लड़ाई के दौरान 11 अफराद हलाक। तालिबान का मुतादिद इलाकों पर कब्जे का दावा। अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। मामले के हल के लिए मुज़ाकरात ही बेहतरीन रास्ता है। सरबराह नेटो। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज पहला मैच आज ब्रिज टाउन में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। बारबाडोस में कौमी क्रिकेटर्स का प्रैक्टिस सेशन फातिहाना आगाज के लिए पुरअज़्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूँगा मोहम्मद अनीस। सुर्खियां आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहली खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा, हम सिर्फ अमन के शराकतदार हैं। PBS न्यूज़ को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम अफगानिस्तान में अफगान फ्रीकैन के दरमियान मुफाहमत की बुनियाद पर अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। तफसील बता रहे हैं हारून इलाही तूर। अमरीकी नशरियाती इदारे PBS की मारूफ एंकर पर्सन जूडी वुडरफ को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली इजहार ख्याल किया और एंकर के सवालात के जामे जवाब दिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की चाहते हैं। What we do not want to be is part of any conflict. Now, if there's a conflict going on in Afghanistan and there are bases in Pakistan, we then become targets. We will then become part of a conflict which we were in the last 15 years, and we do not want. We want to be partners in peace, but not in conflict. Pakistan's position is very straightforward. We want to help, and we have helped, getting the Taliban to talk to the US, got them on the dialogue table. We have done our bit. The reason why we are in this position now is because the military solution failed. The best choice is that somehow we have a political settlement of Afghanistan where it is, as I repeat, an inclusive government. एक सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। आज भी 30 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में सदारती इलेक्शन से पहले मुफाहमती अमल मुकम्मल होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। President Ghani should not have gone for his election. The moment he held the elections, the Taliban became outsiders and he was the president. I felt that he should have delayed the election so that everyone could have been included in the electoral process. So automatically there would have been some political settlement. But once he became the president, he then wanted the Taliban to come and talk to him. Taliban refused to talk to him. They were willing to talk to the Americans, to the other Afghan leaders, but they would not talk to President Ghani. And that's where the deadlock took place. वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि ख़वातीन से मुतल्लिक उनके बयान को सियाक़ो सबाक़ से यकसर हटकर पेश किया गया। इस्लाम ख़वातीन की इज़्ज़त और तकरीम का दर्स देता है। Anyone who commits rape, solely and solely that person is responsible. My comments were completely taken out of context. I used the word parda. In Islam, parda does not mean just clothes. And parda is not restricted to women only. Parda is for men as well. It means bringing the temptation down in a society. Never would I say such a stupid thing where a person who's raped is responsible for somehow. It's always the rapist that is responsible. वज़ीर आज़म इमरान खान ने एंकर के मुख्तलिफ सवालात पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के पाकिस्तान पर असरात का भी तफसीली इहाता किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी किसी सूरत पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की अफ़गानिस्तान के अमन से मुंसलिक है। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए ताउन की नई राहें तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात की माशी जहद को तक़वियत देने और तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में वसी मौक़े से इस्तेफ़ादा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल को फ़ाल करने के लिए इक़दामात की तारीफ़ की। उन्होंने दोनों ममालिक की तरक्की में सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानी बरादरी के अहम किरदार को सराहते हुए कहा कि मजबूत अवामी रवाबित दो तरफ़ा ताउन के लिए ठोस बुनियादें फराहम करते हैं। कोरोना से वाबस्ता सफरी पाबंदियों की वजह से पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश मुश्किलात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने उनकी सऊदी अरब वापसी के लिए बरवक्त इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तानियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने पर सऊदी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने मसले के सियासी हल की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़रीक़ैन के माबैन तामीरी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म के तयशुदा स्ट्रेटेजिक समत के तहत बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम का इआदा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद जारी होने वाले एलामिया में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तमाम शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने पर जोर दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि तिजारत और मईशत के शोबों में मज़ीद पेशरफ्त के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को इदारा जाती सतह पर उस्तवार करने की ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ माशी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने का ख़्वाहां है। सऊदी क़यादत का विजन 2030 सरसब्ज़ सऊदी अरब और सरसब्ज़ मशरिक़ वस्ता मनसूबे लायक तहसीन हैं। सदर ममलिकत ने कोरोना के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी का ख्याल रखने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। आलमी वबा के दौरान हज के कामयाब इंतजामात पर सऊदी हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सदर ममलिकत ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को मकबूजा जम्मू कश्मीर में मासूम मुसलमानों पर भारतीय जुल्मों सितम से आगाह किया। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्कों के माबैन इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात में अफ़गान अमन अमल, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और भाईचारे पर उस्तवार हैं। दोनों मुल्क अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके गिरदनवाह में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। अलल सुबह होने वाली बारिश से नाला लई की सतह भी बुलंद हो गई है। इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट के बायस मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। ज़िले इंतजामिया की टीम्स नालों और सड़कों को साफ कर रही हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ इमरान मनसूब खान। इमरान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? मौसम, बारिश अभी भी जारी है और कितनी शिद्दत से बारिश हो रही है? जी रिजवान, देखें बारिश तो अब तकरीबन थम चुकी है और वक्फे से बारिश का सिलसिला तो जारी है, लेकिन जो ये बारिश की आप जैसे कि हम सब इल्म में कि इसकी पेशन गोई भी थी कि रात 1 बजे का बारिश होने का इम्कान है, तो रात को जब तक 4:30 बजे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और जो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया, उसके बाद जो है रावलपिंडी के जो निचेबी इलाके हैं वहाँ पे पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई। और चूंकि रेस्क्यू 112 जो थी वो उनकी कंट्रोल रूम ने उनको अलर्ट किया हुआ था। 9 मकामात पर उन्होंने टीमें अपनी रवाना कर दी थी। कटारियाँ पुल और गवारमंडी के मुकाम पर पानी की सतह जो है शुरू में बुलंद हुई बतदरीज, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आज सुबह 9 बजे से जो है पानी की सतह कम होना शुरू हो गई, लेकिन बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। जबकि जो सबसे ज़्यादा नुकसान हमने देखा वो हुआ है सेक्टर 11 में, जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है बारिश जो है वो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गई। और उसके बाद जो है वहाँ पे रेस्क्यू 112 और सीडी इंतजामिया ने भी अपनी टीमें रवाना की, जबकि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से
جو پیغام جاری ہوا ہے اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو فوجی دستے ہیں وہ بھی وہاں پر بھیجے گئے ہیں اور کسی بھی قسم کے ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں جو ہے بہت فوجی دستے وہاں پہ ان کی ہیلپ کے لیے موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ایک کنٹینجنسی پلان بھی تیار کیا گیا کہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے جو ہے یہ پلان ہے اور اس میں وہ پاک فوج کے دستے مستعد ہیں. جو اس کے علاوہ جو جی اچھا عمران منصب یہ بتائیے گا کہ E11 میں چونکہ آپ نے یہ پہلے بھی منشن کیا کہ کلاؤڈ برسٹ ہونے کی وجہ سے تقریباً پورے اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ جہاں پر پانی نہیں آتا تھا وہاں پر بھی پانی دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ظاہر ہے کہ بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوگا. اب تک کن علاقوں کو خالی کرا لیا گیا ہے پانی سے؟ نکاسی آپ کہاں پر اب تک کامیاب ہو چکا ہے؟ جی سی ڈی اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تقریباً 95% علاقہ جو ہے وہ کلیئر کر لیا گیا ہے. E11 میں چونکہ سب سے زیادہ صورتحال تھی، خراب صورتحال تھی، چونکہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اس ایریا میں اور وہاں پہ جو ہے پانی گھروں میں بھی داخل ہوا جس سے کافی جانی اور مالی نقصان بھی ہوا. تو لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ سول انتظامیہ بھی شامل ہو گئی ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ رینجرز کے جو مزید دستے ہیں وہ بھی وہاں پہ تعینات کر دیے گئے ہیں اور اب جو ہے معاملات تقریباً جو ہے کنٹرول میں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آج جب یہ بارش کا سلسلہ بہت شدت اختیار کر گیا تو راول ڈیم میں بھی پانی کی سطح کافی بلند ہو گئی تھی. صحیح. اور اس وقت کہا گیا کہ یہ جو راول ڈیم یہ اگر ایک خاص حد ہے وہاں تک اگر پانی گیا تو پھر یہ اسپل ویز کھولے جائیں گے. تو کچھ دیر پہلے ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات کی جانب سے ایک ٹویٹ جاری کیا گیا جس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ بلکہ مساجد میں اعلان کروائے گئے ہیں کہ جو علاقے کرنگ ہے اور اس کے ملکہ علاقے ہیں وہاں پہ عوام جو ہے وہ اب محتاط رہیں کیونکہ پانی جو ہے وہ وہاں سے جب گزرے گا تو کسی بھی قسم کا جو نقصان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ایک الرٹ جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ تمام یہ بھی بتایا کہ ریسکیو 112 نے تمام کسی بھی قسم کی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی تمام جو تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور انہوں نے نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کے بعد ایک رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. جی اچھا عمران، چونکہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے ایسی سچویشن میں، آپ دو ٹویٹس کا اور دو نوٹسز کا آپ نے ذکر کیا، ایک حمزہ شفقات کی جانب سے ڈی سی اسلام آباد اور دوسرا پھر پنجاب حکومت کی جانب سے عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی حفاظت کے لیے. این ڈی ایم اے نے پہلے ہی الرٹ جاری کیا تھا، کوارڈینیشن کیسی ہے؟ اور اب چونکہ راولپنڈی اسلام آباد میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے بارش کی وجہ سے، شدید بارشوں کی وجہ سے پیش گوئی ہے مزید بارش ہونے کی، تو جو انتظامات اور الرٹس کا سلسلہ ہے لوگوں کو اویئر کرنے کے حوالے سے اس کے لیے کوارڈینیشن کیسی ہے؟ جی اگر اس کی کوارڈینیشن کی بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ریسکیو 112 ہے انہوں نے تو جو پیغام جاری کیا اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نالے کے قریب رہنے والے افراد ہیں، نالہ لے کے قریب رہنے والے افراد، وہ اپنے افراد وہ گنتی میں رہیں، خصوصاً بچوں کو بجلی کے تاروں اور کھمبوں سے دور رکھیں اور کچھ مکانات اور خصوصاً کچی چھتوں اور دیواروں سے بھی دور رہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نالوں کے زیادہ قریب جو لوگ ہیں وہ نقل مکانی کر کے حفاظتی مقامات پر چلے جائیں اور زیر تعمیر جو عمارتیں ہیں ان سے بھی داخل ہونے سے گریز کریں اور بچوں اور بزرگوں کو بھی اپنے قریب رکھیں. جبکہ جو ہے آپ نے ہمیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج نے بھی اپنے دستے جو ہیں تعینات کر دیے ہیں. جی بالکل ہنگامی حالت اس وقت نافذ ہے اسلام آباد اور راولپنڈی میں، الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. لوگوں سے اپیل ہے کہ گھروں میں رہیں اور دریاؤں کے کناروں سے دور رہیں. بہت شکریہ عمران منصب خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ناظرین، اسلام آباد میں بادل پھٹنے کے باعث مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اسلام آباد کے E11 سیکٹر سے ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائندے رانا افتخار احمد نے. رانا افتخار احمد، اب تازہ ترین صورتحال کیا ہے وہاں پر؟ اپڈیٹ کیجیے گا. جی یہاں پہ جو آج صبح 4:30 بجے بارش شروع ہوئی تھی، یہ بہت شدید بارش تھی جس کی وجہ سے جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پہ پانی جمع ہو گیا. اگر ہم E11 کی بات کریں تو یہاں پہ جو بیسمنٹ تھے یہاں پہ کافی زیادہ پانی جمع ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک خاتون اور ایک بچی کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے. یہاں پہ انتظامیہ جو ہے وہ امدادی کارروائیوں میں اس نے شروع کر دی ہیں اور پانی نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ کئی علاقوں میں گاڑیوں روڈ پہ پانی بھی جمع ہے اور ان کو پانی کو نکالا جا رہا ہے. اگر ہم بات کریں تو جو بارش ہوئی ہے یہاں پہ آج گولڑا میں 103 ملی میٹر ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو بوکرا 21 ملی میٹر، شمس آباد میں 32 ملی میٹر اور چکلالہ میں 17 ملی میٹر. کئی علاقے جو گوال منڈی اور دیگر علاقے ہیں راولپنڈی کے وہاں پانی جمع ہے. جو نالہ لئی ہے وہاں پہ انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا ہے. وہاں بارشوں کے بعد طغیانی آ گئی ہے جس کی وجہ سے پاک آرمی
सिविल इंतजामिया की मदद कर रही है ताकि जो लोग वहाँ पर मुतासर हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। जी। इमरान, राना इफ्तार अहमद, आप आगाह कर रहे हैं कि 2 अफराद की हलाकत, एक खातून और एक बच्ची की हलाकत की इन्फॉर्मेशन हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान पहुंचा है क्लाउड बर्स्ट की वजह से और इस सैलाब की वजह से? जी, जो बेसमेंट है इस एरिया में जो तहखाने वहाँ पे पानी जमा है, अभी तो इस कहना कबल वक्त है क्योंकि देखा जा रहा है, इसको अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या नुकसान हुआ है और इमारतों में जब पानी निकलेगा और ये भी पता चले काफ़ी इमारतों कुछ जो क्योंकि पानी जब दाखिल होता है तो जो बेसमेंट है वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। इस हवाले से अभी कोई इतला तो नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो गाड़ियाँ पानी में बही हैं जिन इलाकों में पानी ज़्यादा हुआ है। जी सही है। तो राना इफ्तिखार, ये भी बताएगा, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी लोगों का गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है, क्या इंतजामिया की जानिब से कोई तखमीना लगाया गया है कि किस कदर माली नुकसान हुआ है लोगों का? नहीं, अभी भी हमने देखा है जो गाड़ियां हैं बारिश में जो रुक गई थी उनको निकाला जा रहा है बारिश के इलाकों से। अभी ये तखमीना तो अभी क्योंकि अभी तो इमदादी कार्रवाई जारी हैं, लोगों को पहली तरजीह है जो लोग फंसे हुए हैं मुतासर उनको वहाँ से मुंतकिल किया जाए सेफ मकामात पर और नुकसान का जायजा उसका तखमीना बाद में लगाया जाए। ठीक है। अच्छा राना इफ्तार, चूंकि सैलाबी सूरत हाल है, बारिश से आ रही है, इस वक्त बिजली का क्या सूरत हाल है, मवासलात के निज़ाम के हवाले से आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को। बारिश वाले इलाके हैं वहाँ पे कुछ निज़ाम मुतासर भी हुआ है लेकिन जो इस्लामाबाद के अक्सर एरिया हैं कुछ देर के लिए बिजली का निज़ाम थोड़ी देर के लिए हुआ लेकिन वहाँ पे बहाल कर दिया गया है और इस हवाले से इंतजामिया वो अलर्ट है और काम जो लेस्को के जो आइस्को के हुकाम हैं वो भी अलर्ट हैं, वो भी अपना काम कर रही हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया राना इफ्तिखार अहमद, आप हमें E11 की खास तौर पर सूरत हाल और मजमूई तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, खबरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने नालालई में आने वाली तोग़यानी के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लेते हुए कहा है कि चंद माह के अंदर ही नालालई का मंसूबा शुरू होगा क्योंकि नालालई रावलपिंडी का वाहिद बड़ा मसला है जो अभी तक हल नहीं हुआ। और इस पर पिछले 20 साल पहले हमने काम शुरू किया था, अभी काम नहीं शुरू हो सका। इमरान खान ने, वजीर आज़म पाकिस्तान ने 2-3 मीटिंग्स की हैं, उस्मान बुज़दार ने भी की हैं और नेस्पाक को भी फौरी तौर पर कहा गया है कि इसको कम लागत का खर्चा किया जाए और यहाँ इंशाअल्लाह ताला ये जितनी गरीब बस्तियाँ हैं ये बेहतर हो जाएंगी, ये सारे लोग कीमती हो जाएंगे और चंद महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 दिन में नाला लई पे या 90 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। और ये नाला लई जो है रावलपिंडी का वाहिद मसला है जो अभी तक हल नहीं हुआ। जब मैंने शुरू किया था तो 26 अरब का था, अब ये 90 अरब रुपए पे पहुंच गया है। सो इंशाअल्लाह ताला जो मकीन है, आर्मी पहुंची हुई है, वासा पहुंचा हुआ है, कारपोरेशन मौजूद है, पुलिस सारी मौजूद है, ट्रूप्स भी आए हुए हैं, 11 22 भी मौजूद है, तमाम अदारे जो सैलाब को से मुंसलिक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इसी हवाले से कुछ मजीद आपको आगाह करेंगे। रावलपिंडी में शदीद बारिश और नालालई में तोग़यानी के बायस वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तमाम मुतालिका अदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। वज़ीर आला ने किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया, PDM में और रेस्क्यू 1122 समेत इदारों को इमदादी सरगर्मियों के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने कहा कि नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी के लिए तमाम वसाइल पुरकार लाए जाएँ और ज़रूरी मशीनरी के जरिए कम से कम वक्त में निकासी आप को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने मुतालिका इदारों के तमाम अफसरों को हिदायत की है कि नशेबी इलाकों से पानी फौरी तौर पर निकाल कर रिपोर्ट पेश की जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में अमन और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान से देरीना ताल्लुकात हैं, हम अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने लाखों अफगान खानदानों की मेहमान नवाजी की और 30 लाख से ज़्यादा अफगान महाजरीन इस वक्त पाकिस्तान में हैं। हमारा नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह, हम अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं। हम अफ़गानिस्तान में इसलिए अमन चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो हमारा अपना, हमारे एक ही कबाइल के लोग हैं, उनका साथ हमारे रिश्ते हैं, उनके साथ हमारी सदियों की क़राबतदारी है। अगर अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो वहाँ से एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस होगा
اور دنیا نے 1988 میں کیا کیا کہ جب یہ کرائسس ختم ہوا، یو ایس ایس آر نے بھی بیگ اٹھایا اور چلے گئے، امریکہ نے بھی بیگ اٹھایا اور چلے گئے۔ افغانستان کے اندر بم پھٹ رہے ہیں، ہم نے یہاں پہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ تو ہمارے شہید ہوئے ہیں، سپر پاورز کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم انڈیویجولز کو چھوڑ دیں، جو بڑی لیڈرشپس ہے وہ اپنا سوچیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم عام لوگوں تک ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو پہنچا سکیں۔ جی ناظرین، اسلام آباد میں سیلابی صورتحال ہے اور اس حوالے سے ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے مزید، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات۔ سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اب مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے اسلام آباد کی، کیونکہ جو راول ڈیم ہے اس کے بھی سپل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر دو جگہ پہ فلیش فلڈنگ ہوئی ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے سید پور کے علاقے میں اور گولڑا کے علاقے میں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 1 گھنٹے کے سے کم کے ٹائم کے اندر 100 ملی میٹر سے اگر زیادہ بارش ہو جائے۔ صحیح، تو ان دو جگہوں پہ ہوا ہے، لیکن ان دو جگہوں میں الحمدللہ سید پور اور ایسٹک کا ایریا سارا ہمارا کمپلیٹلی کنٹرول رہا ہے۔ لیکن E11 کے اندر ایک پرائیویٹ سوسائٹی تھی جس میں لوگوں کی بیسمنٹ کے اندر گھروں میں پانی چلا گیا اور 2 گاڑیاں بہہ گئی، لیکن الحمدللہ ہماری ٹیم نے 30 منٹ کے اندر اس کو کلیئر کرا دیا۔ اس ٹائم پر اسلام آباد 100% کلیئر، بارش بھی رک چکی ہوئی ہے، تمام ایریا ہمارا کلیئر ہے۔ جو لوگوں کی بیسمنٹ میں پانی گئے ہوئے ہیں اس کے لیے ہم نے ڈی واٹرنگ پلانٹس منگوائے ہوئے ہیں، وہ جگہ جگہ سے ہم خالی بھی کروا رہے ہیں۔ تمام روڈز بھی اس ٹائم پہ کھول دی گئی ہیں، تمام روڈز میں کام چل رہا ہے۔ اور ابھی یہ کیونکہ یہ نان اسٹاپ اگلا جو اسپیل ہے، اگلے 6-7 دن بارش آتی رہے گی، تو اس کی وجہ سے جو ہمارے راول ڈیم اور سنگلی ڈیم ہے اس میں جب ڈینجر پوائنٹ سے اوپر پانی چلا جائے تو پھر ان کو ہم وقتاً فوقتاً کھولتے رہتے ہیں۔ اور وہ ابھی راول ڈیم کو ہم نے کھولنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ابھی الحمدللہ چیزیں کنٹرول میں ہے تو ہم نے اس کو پھر نہیں کھلوایا کیونکہ بارش رکی ہوئی ہے۔ لیکن چیزیں ابھی جو نیچے والی لو لائنگ ایریاز ہیں ان میں ہم نے منالی بھی کرا دیا ہے، لداخ بھی کرا دی ہے، انفورسمنٹ بھی کلیئر کرا دی ہیں، ریسکیو کی ٹیمز بھی وہاں پر موجود ہیں، پاکستان آرمی بھی ہمارے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ساتھ کام کر رہی ہے۔ انشاءاللہ کوئی ایسا ایمرجنسی والی سچویشن نہیں ہوگی۔ حمزہ شفقات صاحب، یہ تو سچویشن ہوگی E11 کی، آپ نے ذکر کیا گولڑا میں بھی ریکارڈ بارش ہوئی ہے 1 گھنٹے کے اندر اندر، تو جو مضافاتی علاقے ہیں اسلام آباد کے وہاں پر بھی ٹیمز موجود ہیں، وہاں پر بھی انتظامات کیے گئے ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے؟ جی ابھی تو کوئی بندہ اسٹک نہیں ہے، ریسکیو کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف اینٹیسپیشن میں موجود ہیں۔ اسلام آباد کے اندر سے 2 بڑے دریا گزرے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی اسلام آباد کے حوالے سے۔ اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال بارش کے بعد اور گزشتہ رات سے شروع ہونے والی بارش کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، اور ہم نے دیکھا ایک طویل عرصے کے بعد غالباً اسلام آباد میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کافی دیر کے لیے پانی اگر جمع ہوا ہو اور سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ کلاؤڈ برسٹ بتایا جا رہا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ 2 علاقے اسلام آباد کے بتائے گئے ہیں، ایک E11 ہے اور دوسرا گولڑا کا علاقہ ہے جہاں پر یہ بارش ہوئی ہے، لیکن انتظامیہ متحرک ہے اور بہت جلد علاقے کو کلیئر کرا لیا جائے گا۔ ناظرین آگے بڑھیں گے، خبرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں گے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ کشمیریوں نے 25 جولائی کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں کے حقیقی ترجمان ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ گیلپ سروے کے مطابق تحریک انصاف عوام میں مقبول جماعت ہے۔ نواز شریف لندن میں ملک دشمنوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو آپ کے بیانیے کی وجہ سے شکست ہوئی ہے۔ جو بیانیہ مریم صفدر کشمیر کے اندر لے کے گئی، وہ کشمیر جس کشمیر کے اندر لوگ امن پسند ہیں، جو شہداء کی سرزمین ہے، نہ RSS کی آئیڈیالوجی کو کنڈیم کرتی ہے مریم وہاں پر، نہ ہی جا کر حریت رہنماؤں کی حمایت میں کوئی بیان دیتے ہیں۔ آپ اپنے انکل مودی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے کیونکہ نواز شریف نے منع کیا ہوا تھا۔ اوپر سے راجہ فاروق حیدر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شکست کے بعد شاید اپنا جو ہے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کشمیری غلام ہیں۔ وہ بھئی میرا ان سے یہ سوال ہے، 5 سال آپ نے حکومت کی تو کیا وہ حکومت آپ کو غلامی کے ذریعے ملی تھی؟ کسی جو سوچ ہے اس کو کشمیریوں نے 25 جولائی کو ریجیکٹ کیا ہے، اس کو مسترد کیا ہے۔ سیالکوٹ کے حلقہ PP38 میں ضمن انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ یہ نشست مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی خوش اختر سبحانی کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ جی بالکل، اور حلقے کے عوام اس وقت اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے پولنگ بوتھس میں موجود ہیں۔ مزید اپڈیٹس کیا ہیں یہ ہم حاصل کریں گے ہمارے نمائندے موزم الدین سے۔ موزم الدین، اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, इस टाइम मैं सियालकोट में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज हल्का PP 38 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। हल्का PP 38 में जो ये सीट है, ये जो मुस्लिम लीग नून के चौधरी अख्तर सुबहानी के इंतकाल कर जाने के बायस खाली हुई थी, जिसके बाद आज यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। ज़िमनी इंतखाब में कुल 8 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से चौधरी एहसन सलीम बरियार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चौधरी तारिक सुबहानी हिस्सा ले रहे हैं। उसके अलावा 6 मज़ीद उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान यहाँ पर कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर कुल हल्के में 165 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहाँ पर जो कुल जो लोग जिन्होंने वोट कास्ट करना है, यहाँ पे जो वोटर की तादाद है वो 2,33,422 है, जिनमें 1,28,128 मर्द और 1,05,294 खवातीन शामिल हैं। वोट कास्ट करने के लिए इन 165 पोलिंग स्टेशन में 487 बूथ कायम किए गए हैं, जिनमें से 262 मर्द और 225 खवातीन के लिए कायम किए गए हैं। हल्के में आज छुट्टी दी गई है ताकि जो लोग हैं वो बाहर आ सके और वोट डाल सके। अगर हम इस हल्के की बात करें तो यहाँ पर 2018 के इंतखाबात में कुछ 1.25 लाख के करीब वोट यहाँ पर डाला गया था, लेकिन जो हमारी उम्मीदवारान से बात हुई है उनका ये कहना है कि उनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन यहाँ पे चलाई है, और उनको पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो आज वोटर का जो टर्न अराउंड होगा वोट्स का, वो 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में ज़्यादा होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो सुबह से 8 बजे से पोलिंग का अमल जारी है, बगैर किसी तातुल के ये अमल जारी है। सुबह शाम 5 बजे तक ये अमल जारी रहेगा। वोटर्स की बड़ी तादाद अपने अपने पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है और यहाँ पे आके बगैर किसी मसले मसाइल के यहाँ पे वोट कास्ट किए जा रहे हैं। किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स के जो नौजवान हैं और जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और वोटिंग का जो अमल है वो बड़े जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मौसमुद्दीन। सियालकोट के हल्के PP 38 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है और ये अमल बिला तातुल जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कराची में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का चीन से दहाइयों का और मजबूत ताल्लुक है। CPEC चीन का अहम मनसूबा है जिससे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की हो रही है, जबकि कुछ क़ुव्वतें इस मनसूबे के बायस घबराहट का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान मिलकर इन क़ुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे और दोनों मुल्कों की दोस्ती और ताल्लुकात बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ क़ुव्वतें चीनी शहरियों को निशाना बनाकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं, मगर इनके अज़ाइम को दोनों मुल्क मिलकर नाकाम बनाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है और जो ज़बान इस्तेमाल की गई है इससे हर पाकिस्तानी को तकलीफ हुई है, मगर हम अमन की खातिर अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी 1 दिहाई से ज़्यादा अरसे से हुकूमत में है, मगर सिंध में गवर्नेंस और अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं और सिंध के कच्चे के इलाके में डाकू मुतहर्रिक हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का रवैया सिंध और पंजाब में अलग अलग है। उन्होंने कहा कि सिंध में PTI लोगों को मुतबादिल की आदत फ्राहम करेगी। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्क के मारूफ सियासतदान मुमताज़ अली भुट्टो के इंतकाल पर उनकी रिहाइशगाह पर मरहूम के बेटे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमीर बख्श भुट्टो से ताज़ियत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, रुकन कौमी असम्बली जयप्रकाश लालमाली और दीगर रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज बहरीन रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। इजलास में सरमाकारी, सनत, तवानाई, ज़राअत, इत्तलात व नशियात और सयाहत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। दौरे में वज़ीर ख़ारजा और उनके बहरीनी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। कुछ बात कर लें कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी देखी जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह 7.8% तक जा पहुंची। कोरोना वायरस के मजीद 4,119 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 44 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस से जान भगोने वालों की मजमूई तादाद 23,131 हो गई है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 52,291 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी के साथ जारी है। 26 जुलाई को मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की 6,83,696 खुराकें लगाई गई। NCOC की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वैक्सीन के अब तक 2,62,46,990 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। साइनोफार्म की मजीद 12 लाख वैक्सीन PIA के जरिए पाकिस्तान पहुँच गई हैं। कराची में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म डेल्टा के केसेस में इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे सुहेल जमाली। कराची के मुतादिद सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों के दाखिले की गुंजाइश खत्म हो रही है। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़, डाउ यूनिवर्सिटी, कतर जनरल अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद, लियारी जनरल, इंडस अस्पताल और एक्सपो सेंटर में कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस तकरीबन तमाम बेड्स भर चुके हैं।
जिन्ना अस्पताल की डायरेक्टर सीमी जमाली ने पीटीवी को बताया कि कोरोना के मरीजों के लिए मजीद 70 बिस्तरों का इजाफा किया गया है। जामा कराची के डिपार्टमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की जानिब से सैकड़ों नमूनों के जायजे में 90% से जायद में भारतीय किस्म डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक हुई थी। हालात जो हैं इस वक्त काफ़ी ऐसे हो गए हैं कि जिसके अंदर हमारे पास मज़ीद और पेशेंट्स को अकोमोडेट करने में मुश्किलात हो रही हैं। मुल्क भर में कोरोना से बचाव की वैक्सीन भी बड़े पैमाने पर लगाई जा रही है। ताहम तिब्बी माहिरीन के मुताबिक वैक्सीन के बावजूद डेल्टा या कोरोना का कोई दूसरा वेरिएंट लग सकता है, मगर इस सूरत में मरज की अलामात में शिद्दत नहीं होगी। कराची में लोगों की कलील तादाद ही अपने बाशऊर होने का सबूत देती है। ताहम अब भी अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर रहे। मास्क पहनना अच्छा चीज़ है, अपना हिफाजत करो, दूसरे की भी हिफाजत करो। मास्क जो है इंसान की बचत कर रहा है और इंसानियत का नाता भी ये कह रहा है कि मास्क लगाएं, अपने आप को ही महफूज करें और दूसरे को ही महफूज करें। अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी महफूज बनाने के लिए ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि इस वबा को शिकस्त दी जा सके। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। वफाकी काबीना ने मुल्क की पहली नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी और एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में होने वाले इजलास में सिक्योरिटी से मुतालिक नया निज़ाम वज़ा करने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें अवाम के टैक्स के पैसे को शफाफ और जिम्मेदाराना तरीके से खर्च करना है। मज़ीद तफसील बताएंगे रियाज बरकी। काबीना को वफाकी दारुल हुकूमत, सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सियासी रहनुमाओं, वज़राए आला वज़रा, मशीरान माविनीन, जज साहिबान, साबका सदूर और वज़राए आज़म और सरकारी शख्सियात के साथ तैनात सिक्योरिटी एहलकारों और उन पर उठने वाले अखराजात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी टैक्स गुजारों के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ है। काबीना ने फैसला किया कि सिक्योरिटी बतौर स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि जायज़ ज़रूरियात की बुनियाद पर फराहम की जाएगी। इस हवाले से काबीना ने आला सतह की थ्रेट असेसमेंट कमेटी के क़याम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि सिक्योरिटी की फराहमी के हवाले से मयार मुकर्रर करने के लिए आइंदा इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक़ राय दही के हवाले से ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि इलेक्शन के हवाले से किसी भी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात को मुकम्मल तौर पर दूर करने के लिए जरूरी है कि हक़ राय दही के अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से अपोजिशन की बेमानी तनकीद का जिक्र करते हुए काबीना ने नोट किया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस अमर को यकीनी बनाने में मदद देगा कि इंतखाबी अमल पर किसी किस्म का एतराज़ न उठाया जा सके। काबीना ने सरमायाकारी बोर्ड को इख्तियार दिया कि वो कारोबारी अमल को आसान बनाने के हवाले से फरसूदा कवानीन और शराइत को खत्म करने के लिए मुजव्वज़ा कानून साजी करने के अमल का इजरा करे। इजलास ने सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक से मुआहिदों के हवाले से नए फ्रेमवर्क और हिकमत अमली की भी मंजूरी दी। काबीना ने चेक रिपब्लिक के साथ दोहरी शहरियत रखने की तजवीज़, मुल्क की पहली नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी और हुकूमती एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2021 की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने हिदायत की कि 31 जुलाई तक तमाम सरकारी इदारों के मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन यकीनी बनाए। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नून लीग के रहनुमा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ऑफिस में बैठकर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग को अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो वज़ीर आज़म हाउस में कश्मीर का जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं वो रो रो के बता रहे हैं कि जी मैं चूँकि इलेक्शन हार गया हूँ तो धांधली हुई है। अब आप मुझे बताइए, आपकी अपनी हुकूमत, आपका अपना लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन और उसके बाद आप इलेक्शन हार जाएं तो फिर आप कहें कि धांधली हुई है, तो अब इसका क्या हल है? सो इसीलिए फिर जो वज़ीर आज़म बात करते हैं कि फिर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप अपने लोग लगाए हैं, हुकूमत आपकी है, पुलिस आपके अंडर है, फिर भी आपको यकीन नहीं है और आप कह रहे हैं धांधली हुई है, तो फिर वाहिद हल यही है कि टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत इसलिए बार बार इंतखाबी इस्लाहात पर जोर दे रही है ताकि आइंदा इस किस्म के इल्ज़ामात की गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत नैब कानून समेत तमाम इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत के लिए तैयार है। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। जनूबी अफ्रीका के मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी मुलाकात की और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तानी अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ़ किया। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ को इदारे की कारकर्दगी और पाकिस्तान में ड्रग ट्रैफिकिंग के कंट्रोल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर ऑफिसर्स और स्टाफ से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मनशियात स्मगलिंग और इस घिनौने धंधे में मुलव्विस अफराद नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा और इंसानियत के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग मनी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। ड्रग डीलर्स के साथ आहिनी हाथों से निपटना ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने ड्रग ट्रैफिकिंग के कंट्रोल के हवाले से ANF के किरदार को सराहा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वज़ीर कम्युनिकेशन एंड वर्क सरदार आसिफ नगई ने लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात का हुकूमती फैसला इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन शफाफ इंतखाबी अमल चाहती है तो इंतखाबी इस्लाहात पर बात करे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात की शफाफियत पर कोई भी उंगली न उठा सके। सियासी मुखालिफिन जितनी मर्जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस बुला लें, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि आज पूरे मुल्क में यकसां तरक्की के मंसूबे शुरू हैं और सियासी मुखालिफिन के सिवा सब मुल्क की माशी तरक्की और इस्तेहकाम का एतराफ़ कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने खबरदार किया है कि मोदी की क़यादत में इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत ने मुतनाज़ इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए कश्मीरियों को एक एक करके कत्ल करने की तवील मुद्दती पॉलिसी अपना रखी है। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर से जारी बयान में मकबूजा इलाके में मुहासरों और तलाशी की मुसलसल कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, काबिज इंतजाम भारतीय फोर्सेज ने कश्मीरियों को ईद उल अज़हा के मुकद्दस दिनों में भी नहीं बख्शा। हुर्रियत रहनुमाओं ने गुज़िश्ता हफ्ते शहीद होने वाले नौजवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि भारत कश्मीरियों को दबाने के लिए फौजी ताकत का वहशियाना इस्तेमाल कर रहा है। 10 लाख काबिज भारतीय फौज मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। नस्ल कुशी और मावराए अदालत कत्ल रोज़ का मामूल है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से अपील है कि वो सूरत हाल का नोटिस लें। ज़िला बांडीपुरा के इलाके सुमलर में भारतीय फ़ौज की तरफ से मुसलसल चौथे रोज़ भी बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रहीं। भारतीय फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ इलाके में 3 नौजवानों को शहीद किया था। नामालूम अफराद ने आज श्रीनगर में एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त शहर के इलाके नवाकतल के रहायशी मेहरान अली के तौर पर हुई है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट 2021 में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सैकड़ों कश्मीरियों को अदालती कार्रवाइयों के बगैर काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेलों में नजरबंद रखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि एहलकारों को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के बावजूद आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि निशाना दुरुस्त न होने के बावजूद भारतीय फोर्सेज एहतजाजी मुजाहरों को मुंतशिर करने के लिए मुसलसल पैलेट गन्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर लोग अपनी बिनाई खो रहे हैं। भारत अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि वो दफ़ा 370 की मनसूखी पर भारत नज़रसानी करे। उन्होंने कहा कि मोदी ने कश्मीरियों से आज़ादी छीन ली है और वो गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आज़ाद कश्मीर शाख ने भारतीय सदर रामनाथ कोविंद के दौरा मकबूजा जम्मू कश्मीर के खिलाफ आज इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। अफगानिस्तान में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान के दरमियान मुख्तलिफ अजला में शदीद लड़ाई जारी है। हुकूमती फोर्सेज ने सूबा कपीसा के ज़िले नजराब में तालिबान के हमलों को नाकाम बना दिया है। शहर और इसके इतराफ में रात गए शुरू होने वाली लड़ाई के दौरान 11 अफराद हलाक हुए, जिसमें 2 आम शहरी, 4 सिक्योरिटी एहलकार और 5 तालिबान शामिल थे। तहम हुकूमती फोर्सेज ने तालिबान को इलाके से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी जानिब तालिबान ने मुतादिद इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। दोनों जानिब से शदीद लड़ाई में अब तक बड़ी तादाद में हलाकतें और लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक एक माह के दौरान कंदहार से 1.5 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। नेटो के सरबराह ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को इंतहाई पेचीदा करार दिया है। स्टोल्टनबर्ग ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से बातचीत के बाद एक ट्विटर पैगाम में कहा कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद मुल्क को सिक्योरिटी की सख्त सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। मामले के हल के लिए मुज़ाकरात ही बेहतरीन रास्ता है। उन्होंने कहा कि नेटो अफगानिस्तान की माली मुआवनत, शहरियों की मौजूदगी और मुल्क से बाहर तरबियत जारी रखेगा।
दुनिया भर में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा तेजी से फैल रही है, जिसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में मुस्बत केसेस और अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 5,70,000 मजीद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जबकि 9,370 मुतासर अफराद लुत्मा अचल बने। 4,42,000 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी। अमरीका में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा है, जहाँ 24 घंटे में 58,800 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। ईरान में 34,000, इंडोनेशिया में 45,000, बरतानिया और रूस में 23,000 मुस्बत केसेस सामने आए हैं। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा के फैलाव के सबब अमेरिका ने सफरी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया है। बरतानिया समेत यूरोप के 26 ममालिक पर भी सफरी पाबंदियों का इत्तलाक रहेगा। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मजीद 4 हफ्तों के लिए लॉकडाउन में तोसी पर रिहायशियों ने एहतजाज किया। आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 41,92,000 से ज़्यादा अफराद हलाक, जबकि 19 करोड़ 59 लाख से ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं। दुनिया में एक्टिव केसेस की तादाद इस वक्त 1 करोड़ 41,09,000 है। भारत में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोरोना के डेल्टा वायरस के बायस केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। मुतादिद अजला में मस्बत केसेस की शरह मुसलसल बढ़ रही है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 42,928 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 3 करोड़ 14,83,000 से तजावुज़ कर गई। 640 मजीद अमवात के बाद कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 4,22,054 हो गई है। भारतीय वजारत सेहत के हुक्काम का कहना है कि मुल्क के बेशतर अजला में सूरत हाल गंभीर है, इसलिए हमें बेहतर और नई हिकमत अमली के साथ हालात का मुकाबला करना होगा। चंद रोज कबल कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने भी कोरोना के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों को आड़े हाथों लिया था। राहुल गांधी ने भारत की मुख्तलिफ रियासतों में वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। मूसलाधार बारिशों के बाद भारत, चीन, बरतानिया समेत मुतादिद ममालिक में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। सैकड़ों अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मगरबी साहिली पट्टी में 594 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इलाके से लोगों को निकाल लिया गया। लैंडस्लाइडिंग, मकानात गिरने और मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई है, जबकि बड़ी तादाद में अफराद अब तक लापता हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना की रियासतों में तूफानी बारिशों और सैलाब से वसी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फसलें पानी की नज़र हो गईं और सैकड़ों मकानात भी मुनहदिम हो गए। लाखों अफराद जाने बचाने के लिए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। मौसमारी तब्दीलियों का असर चीन और यूरोप पर भी रहा। चीन के सूबा हेनान और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में शदीद बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। चीन में हलाकतों की तादाद 71 तक पहुँच गई, जबकि जर्मनी और बेल्जियम में भी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जर्मनी में 180 और बेल्जियम में 50 के करीब अफराद हलाक, जबकि मुतादिद लापता हो चुके हैं। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में ट्रक और बस में तसादुम हादसे में 18 मजदूर हलाक, जबकि 10 जख्मी हो गए। ये हादसा उत्तर प्रदेश में बाराबांकी के करीब एक शाहरा पर पेश आया, जब मजदूर डबल डेकर बस का शाफ्ट टूटने के बाद उसके साथ शाहरा पर सो रहे थे कि पीछे से एक ट्रक बस से टकरा गया। रेस्क्यू कारकुनों ने लाशें बस के नीचे से निकाल लीं, जबकि जख्मियों को लखनऊ के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस में 150 मुसाफिर सवार थे। ज़्यादातर मुसाफिर पंजाब या हरियाणा रियासतों में काम करने के बाद मशरकी रियासत बिहार को वापस जा रहे थे। ज़िला इंतजामिया और पुलिस ने हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। भारत सड़कों के नाकिस और ख़तरनाक नेटवर्क की वजह से ट्रैफिक हादसात में तकरीबन 1.5 लाख अफराद हलाक होते हैं। उधर चीन के शिमाल मगरिब में सराय गोबी के किनारे शहर डोंगहुआंग को 100 मीटर से ज़्यादा ऊंची रेत की दीवार ने निगल लिया है। रेत का तूफान अचानक आया और 5 से 6 मिनट में इस शहर में फैल गया। तूफान की जद में आते ही पूरा शहर चंद लम्हों में धूल के बादलों में गायब हो गया। चीन के सूबा गांशू में शहर डनहुआंग में पिछले कई सालों में इस तरह के रेत के तूफानों का तजर्बा नहीं हुआ। सरकारी खबरसा एजेंसी चाइना न्यूज़ सर्विस के मुताबिक हर मौसम बहार में इस खिते में सैंड स्टॉर्म आम है, लेकिन मौसम गर्मा में कम ही होता है। चिली के चंचोरो मेम्स को दुनिया की सबसे कदीम ममीज़ करार देते हुए यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्सा की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। 20वीं सदी के आगाज में चिली के शिमाल में पाई जाने वाले ये ममीज़ 7000 साल से ज़्यादा पुरानी है। ये ममीज़ मिस्री ममियों से 2000 साल पहले की हैं। अब तक 300 से ज़ायद ममी मिली हैं जो सुर्ख और स्याह पट्टियों में लिपटी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सकाफती तंजीम ने ट्विटर में कहा है कि उसने चीन की ज़ेर सदारत वर्चुअल मीटिंग के दौरान चंचोरो की इन ममीज़ को अपनी फहरिस्त में शामिल किया है। यूनेस्को ने मुख्तलिफ माहिरीन की इस बात की तौसीक करते हुए कहा है कि चंचोरो सकाफत की बस्तियों और मसनूई आज़ा की गैर मामूली अहमियत है।